Hi students, I am A.K. Rajveer and you are most welcome on my YouTube channel Literature Lovers. In today's class, I am going to discuss with you John Bunyan, a major poet students who has written the work like The Pilgrim's Progress, The Life and Death of Mr. Badman and Grace Abounding. This video is helpful for all the aspirants of UGC NET, SET, TGT, PGT, KVS and NVS students. So do not forget to subscribe the channel for complete information for upcoming videos. You can also watch my free classes on one more platform. So students, that is Unacademy, the learning application. On this Thursday, Friday and Saturday, 3 p.m. students, do not forget to join me live on Unacademy platform, total free class and practice booster students. So on every Saturday and Friday, you can get my free classes on Unacademy, the learning application. Now see students, this is the very first question on your screen, so you can see. What is the fate of ignorance in Bunyan's Pilgrim's Progress? So see students, these are the options. He drowns in the river of death. He enters the celestial city. He finds the truth. He discovers the way to hell. So students, these all are the option. And now, do select the right one please. सो आई होप कि आपने सेलेक्ट किया होगा आंसर को, और जल्दी से मैं अब आपको आंसर दिखा देता हूं स्टूडेंट्स. ये राइट आंसर है इसका, फोर्थ वन. बट ये कैसे है, इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है. सो नाउ सी, he drowns in the river of death students or enters the celestial city. So right answer is he discovers the way to hell. Student, John Bunyan's Pilgrim's Progress, that is interesting work. And on this work, you are going to see a character ignorance appears, students. Character ignorance appears. And who also appears not only once, students, several times on during this complete work. So on the way to heaven, Christian meets with ignorance. But finally, students, when they are going to reach heaven, so in the middle of the way, ignorance finds the way to hell. So this one is the student's correct answer. Fourth one, this one is the correct answer. So instead of going to heaven, he was thrown into hell. So students, yes, this one is. Now see the next one. Choose the correct chronological sequence. So you have students, these are all options. So please, I'm not going to read the question. So please focus on the question and then please select the right answer. Hurry up. Okay, so now you can see the correct answer. Correct answer is, students, this one. C is the correct answer. Milton's Paradise Lost, students. Milton's Paradise Lost. So that was appeared in the year 1667. Bunyan's Pilgrim's Progress, so 1678. So, and then see Dryden's Hind and Panther. So that was appeared in 1687. And later on you can see Hutchinson's Memoir. So that was appeared in 1806. So correct answer, students, this is the right chronological order as you can see. स्टूडेंट वुड लाइक टू इन्फॉर्म हेयर बिकॉज स्टूडेंट्स हचिनसन जो है इनको 2 बार आपके यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया है. हचिनसन्स मेमोयर. सो प्लीज स्टूडेंट्स डू नोट डाउन 1806 and Hutchinson's Memoir. Now see the next one question. So here is the next one. Another one question, students. So this is students the question. You can see John Bunyan's The Pilgrim's Progress was written while he was in prison, on a pilgrimage, on a social mission, in a church. Students, do select the right one answer please. And this was the question on your UGC NET exam. An interested candidate who want to join my online paid course can message me on my number 9125090515. And students, do not forget to join next day, Thursday, Friday and Saturday 3 p.m. on Unacademy, the learning application, free platform, free classes, students.
Correct answer. So A is the correct answer. Because students, John Bunyan, when he was writing Pilgrim's Progress, so he was in prison. Yeah, he was at Bedford Gaol, students. Bedford Gaol. Gaol means prison. So he was at Bedford Gaol, students. Okay. And there he has written Grace Abounding. And after finishing Grace Abounding, he started writing another one work. So that is Pilgrim's Progress, students. And Pilgrim's Progress, must understand, so that contains two parts. See the next one. So here is the next one, students, as you can see. So which among the following is a place through which John Bunyan's Christian does not pass? कौन सा ऐसा प्लेस है जहां से जॉन बनियान के जो पिलग्रिम्स है वो पास नहीं होते? बिकॉज जब जॉन बनियान के जो पिलग्रिम्स है यानी कि क्रिश्चियन है और सेकेंड पार्ट में क्रिस्टीना है, सो फर्स्ट पार्ट में जो क्रिश्चियन है वो किन किन प्लेसेस से जाता है, बट कौन से प्लेस से नहीं जाता? आउट ऑफ दीज फोर यू हैव टू सिलेक्ट वन. सो प्लीज सी द आंसर. दिस वन इज द आंसर, स्टूडेंट्स. बी, माउंट हेलिकन. माउंट हेलिकन जैसा कोई प्लेस ही नहीं है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में जिससे क्रिश्चियन या फिर पिलग्रिम्स पास होकर के जाए. सो करेक्ट आंसर इज स्टूडेंट्स माउंट हेलिकन. सो अब ये समझिए कि कौन कौन से प्लेसेस से पास होकर के जाते हैं. स्टूडेंट्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए आप थोड़ा सा हेल्प ले लीजिएगा गूगल की. सी द स्लॉग ऑफ डिस्पॉन्ड, द वैली ऑफ ह्यूमिलिएशन एंड वैनिटी फेयर, स्टूडेंट्स. सो अब ये चीज समझने की जरूरत है कि इन प्लेसेस से होकर के गुजरते हैं. स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट प्लेस कौन सा है जहां से ये क्रिश्चियंस गुजरे थे और लास्ट प्लेस कौन सा है. तो दोस्तों आपको ये याद रखने की जरूरत होगी. और प्लीज फर्स्ट प्लेस विच वन एंड लास्ट प्लेस विच वन, दिस इज द क्वेश्चन. कि स्टूडेंट्स प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि कौन से प्लेसेस है जहां से जॉन बनियान का जो क्रिश्चियन है, जॉन बनियान जिसने जो कैरेक्टर लिखा उन्होंने क्रिश्चियन के बारे में इन पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, सो वो क्रिश्चियन पहला प्लेस कौन सा है जहां से पास होता है और लास्ट प्लेस कौन सा है. प्लीज नेक्स्ट वन. सो क्वेश्चन इज विलियम मैकपीस थाकरे. आप जानते होंगे विलियम मैकपीस थाकरे को. वैनिटी फेयर ऑज इट्स टाइटल टू. सो वैनिटी फेयर जो इनका एक, क्योंकि विलियम मैकपीस थाकरे ने एक नॉवेल लिखा ना वैनिटी फेयर नाम का. सो ये जो स्टूडेंट्स वर्क है, सो ये इसका टाइटल कहां से आया है? सो मुझे लगता है कि आपको आंसर पता होगा क्योंकि हम ऑलरेडी जॉन बनियान और पिलग्रिम्स प्रोग्रेस डिस्कस कर रहे हैं और वैनिटी फेयर का नेम मैंने अभी पिछली स्लाइड में लिया. सो स्टूडेंट सी विलियम मैकपीस थाकरे. सो ही हैज रिटन वर्क वैनिटी फेयर. वैनिटी फेयर को हम एक और चीज से जानते हैं, अ नॉवल विदाउट अ हीरो. स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है, अ नॉवल विदाउट अ हीरो. सो सी द वर्क derives its title from Pilgrim's Progress by John Bunyan, and on Pilgrim's Progress, as you have seen on previous slide, Vanity Fair is the place from where Christian passes. Yeah, so Vanity Fair, this is the title that has been derived by William Makepeace Thackeray, and he has written a novel with the same title, A Novel Without a Hero, that is subtitle of Vanity Fair by William Makepeace Thackeray, because यहाँ पर बेकी साप की लाइफ को डिपिक्ट किया है ठाकरे ने. नेक्स्ट वन स्टूडेंट सी इन जॉन बनियान्स पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, हु कीप्स क्रिश्चियंस हेड अबव वाटर इन द रिवर ऑफ डेथ. होपफुल, हेल्पफुल, फेथफुल और चीयरफुल. स्टूडेंट्स सो डू सेलेक्ट द राइट वन आंसर. वैसे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे मिलते जुलते ऑप्शन है और आपको मजा भी आ रहा होगा, आई होप सो. अब प्लीज सेलेक्ट करके जल्दी से लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में. और प्लीज देखिए मैं एक बात और आपको बता दूं, प्लीज देखिए सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिए स्टूडेंट्स, बिकॉज अगर आपका सपोर्ट नहीं है, अगर आप मेरा सपोर्ट कर सकते हैं सो जस्ट आप शेयर कर दीजिए मेरे वीडियोज को. बस आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक सिंगल स्टूडेंट को, किसी को भी आप शेयर कीजिए, बट कीजिए बिकॉज स्टूडेंट्स मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है. सो सी द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स, वन इज द करेक्ट आंसर. इट्स होपफुल इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स. सो जब ये लोग पहुंचते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं ना कि हेवन के रास्ते में हमें एक रिवर मिलती है, वैतरणी रिवर की हम बात करते हैं ना, वैतरणी रिवर. सो हिंदू मैथोलॉजी में ऐसा कहा जाता है कि उस रिवर से होकर के आपको जाना पड़ता है पार. ऑन द सेम वे कि जब जॉन बनियान ने लिखा, सो जॉन बनियान ने पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में कहा कि देयर इज अ रिवर
एंड ऑन दैट रिवर स्टूडेंट्स दैट इज नोन एज द रिवर ऑफ डेथ। और अगर उस रिवर को पार करना है सो इट मीन्स आपको बहुत अच्छे से आपके जो पुण्य कर्म है जो आपके सो काफी अच्छा होना चाहिए। So right students, so at that time when they were passing, so Christian was passing from there. So hopeful was there. Hopeful it means students hope. It's a positive hope you can say. जिसने क्रिश्चियन को उस रिवर से पार करा दिया और उसको एबव उठाए रखा, वरना क्रिश्चियन वहीं पर उस रिवर में ही वो बिल्कुल डूब जाता और डूबने के बाद फिर अब कहानी खत्म। सो इट मीन्स स्टूडेंट्स यस होपफुल है, वो हेल्प करता है। समझने की जरूरत है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है ये एक एलेग्रिकल वर्क है। एलेग्रिकल का मतलब आप समझते होंगे, एलेग्री। एलेग्री स्टूडेंट्स की एक सरफेस मीनिंग होगी और एक साइड में मीनिंग होगी, सरफेस मीनिंग एंड साइड मीनिंग। और अनदर वन थिंग स्टूडेंट्स दैट कैन बी सीन की ऑन दिस वर्क यू हैव सीन द कैरेक्टर लाइक होपफुल, क्रिश्चियन। क्रिश्चियन जो कि कॉमन मैन को रिप्रेजेंट करता है ना, होपफुल स्टूडेंट्स तो हमारी जो होप है, सिन सो सिन को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज in Bunyan's Pilgrim's Progress, which of the following are found in the slog of despond? So hope, great expectation and dreams of the future, joy and happiness, fears and doubts, discouraging apprehensions, sinful thoughts and false doctrines. So students please select कर दीजिए जल्दी से right answer को, hurry up please. तो चलिए मैं दिखा देता हूं आपको करेक्ट आंसर। सो हियर इज द करेक्ट आंसर एज यू कैन सी राइट नाउ स्टूडेंट्स। सो द स्लॉग ऑफ डिस्पॉन्ड, स्लॉग ऑफ डिस्पॉन्ड स्टूडेंट्स, दिस इज नोन एज स्वैम्प ऑफ डिस्पेयर, स्वैम्प ऑफ डिस्पेयर। So students, this is a fictional place from where Christian passes, and on this place students you can see students meeting with fears, doubts, discouraging apprehension, sinful thoughts. स्टूडेंट्स थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। जैसे क्या होता है कि जैसे हम कहीं के लिए जा रहे होते हैं, जब हम स्पिरिचुअल जर्नी की बात करते हैं ना, स्पिरिचुअल जर्नी, सो स्पिरिचुअल जर्नी में क्या होता है कि देखिए हमारे पास बहुत सारे डाउट्स होते हैं, क्योंकि हम हेवन जाने के लिए जब सोचते हैं तो ये सोचते हैं ना भला हम हेवन पहुंच पाएंगे, हेवन हमारा प्लेस है, क्या हमें वहां पर प्लेस मिलेगा, भगवान देगा। सो हमारे अंदर फियर होगा, डाउट भी होता है। देखिए डाउट और फियर दोनों की, हमें डर भी लगता है यार कैसे जाएंगे, डिस्करेजिंग अप्रहेंशंस, और कई बार ये होता है कि मतलब हम लोग होपलेस हो जाते हैं। और थॉट भी आते हैं सिंफुल की, जैसे हमने जो भी अपनी लाइफ में गलत काम किए ना, सो वो थॉट्स आते हैं कि यस हमने ये किया, हमने वो किया, सो हमें कैसे हेवन मिलेगा। सो स्लॉग इज ऑफ डिस्पॉन्ड, सो दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्ल्डली थिंग्स के प्लीज देखिए आपके पास इतनी सारी चीजें, आपने इतने सारे पाप किए, आपने ये सारा किया, सो आप नहीं पहुंच पाएंगे। सो दिस इज व्हाट दैट कैन बी सीन स्टूडेंट्स ऑन दिस पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। सी द नेक्स्ट वन, सो हियर इज द नेक्स्ट वन क्वेश्चन एज यू कैन सी। In Bunyan's Pilgrim's Progress, Christian and his friend Faithful cause a commotion at the Vanity Fair for many reasons. Which of the following statement is not true of their appearance at the fair? So students, you have 4 options. Please जल्दी से रीड कर लीजिए इन ऑप्शंस को, और अगर वीडियो थोड़ा सा तेज हो तो प्लीज आप पॉज कर लीजिएगा। ओके, सो चलिए अब आंसर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। करेक्ट आंसर इसका है थर्ड वन, दे सैंपल एवरी एंटरटेनमेंट एट द फेयर। स्टूडेंट्स हर टाइप के एंटरटेनमेंट का इन्होंने मजा लिया उस वैनिटी फेयर में। वैनिटी फेयर स्टूडेंट्स अगर सिंबॉलिक में बात करूं पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में, सो सिंबॉलिक है जैसे कि ये वर्ल्डली थिंग्स। देखिए इस दुनिया में बहुत सारे इंजॉयमेंट है, स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि इस दुनिया में बहुत सारे इंजॉयमेंट है, खाओ पियो और मौज करो, आराम से रहो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। सो कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सो ऑन द सेम वे अगर आप देखिए, सो जैसे ये वैनिटी फेयर में पहुंचते हैं, सो वैनिटी फेयर ये दुनिया जो है वो एक तरीके से क्या है, फेयर है, एक मेला है जहां पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इंजॉयमेंट है। अगर आप इसी मोह माया दुनिया के बंधन में फंसे रहना चाहते हैं, सो प्लीज कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन इंडल्जिंग योरसेल्फ, सो यस यू कैन। सो ऑन द सेम वे वैनिटी फेयर एक ऐसा प्लेस है कि जहां से मतलब आप वर्ल्डली इंजॉयमेंट में अगर आप बिजी हो जाएंगे, सो आपको सॉल्वेशन जो लास्ट एंड है लाइफ का वो नहीं मिलता। सो दिस इज स्टूडेंट्स, दिस इज द प्लेस की जहां पर क्रिश्चियन पहुंचता है, और क्रिश्चियन स्टूडेंट्स जब पहुंच जाता है वहां पर उनका एक फ्रेंड भी है यहाँ पर, फेथफुल। सो ये दोनों लोग कोशिश करते हैं बहुत सारी, और स्टूडेंट्स करते क्या है एग्जैक्टली, सी दे आर ड्रेस्ड डिफरेंटली देन द अदर फेयर गोअर्स। या ये वो करते हैं स्टूडेंट्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दे सैंपल एवरी एंटरटेनमेंट एट द फेयर। नो, उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। उन्होंने क्या किया था स्टूडेंट्स कि उन्होंने डिफरेंटली खुद को ड्रेस्ड किया।
अनदर वन स्पीक लैंग्वेज, सो जिससे पता चल जाता है वहां के लोगों को कि ओ दीज आर नॉट फ्रॉम दिस वर्ड, दे आर फ्रॉम अनदर वर्ड। दे रिफ्यूज टू लुक एट द मर्केंटाइज एट द फेयर, और इन्होंने ये भी किया था स्टूडेंट्स कि इन्होंने किसी और चीज को देखा भी नहीं था। ये जो ऑप्शन है ना, दे सैंपल एंटरटेनमेंट एट द फेयर, ये बिल्कुल नहीं करते हैं ये लोग, बिल्कुल भी। सो स्टूडेंट्स ये इनकरेक्ट है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन। सो हियर इज द नेक्स्ट वन। सी, इन जॉन बनियान्स पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, what is the first obstacle encountered by Christian on his progress? स्टूडेंट्स मैंने अभी देखिए आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था प्रीवियस स्लाइड में, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा ना कि देखिए कौन सा फर्स्ट प्लेस है, कौन सा लास्ट है, मस्ट रिमेंबर। और ये सभी यूजीसी के क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मैंने ये क्वेश्चंस नहीं फॉर्मेट किए हैं, मैं जस्ट आपको दिखाना चाहता हूं ऑल द यूजीसी नेट एस्पिरेंट। बिकॉज स्टूडेंट्स देखिए मेरा जो पर्पस है, मैं चाहता हूं सारे स्टूडेंट्स को ये एटलीस्ट पता चले कि हाउ टू स्टडी। जब हमें यही नहीं पता कि कैसे पढ़ना यूजीसी के लिए, सो हम कैसे एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। सो देखिए ये राइट वे है कि जब आप ये समझ जाएं कि क्वेश्चंस कहां से आते हैं, उस चीज को आप कवर अप कर लीजिए, यूजीसी चुटकियों में क्वालिफाई हो जाएगा। नाउ सी स्टूडेंट्स, स्लॉग ऑफ डिस्पॉन्ड, वैनिटी फेयर, द रिवर ऑफ डेथ एंड सी द स्वैम्प ऑफ डिस्पेयर। सो करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए करेक्ट आंसर इसका स्लॉग ऑफ डिस्पॉन्ड। सो ये करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, क्योंकि स्लॉग ऑफ डिस्पॉन्ड पहला प्लेस था जहां पर मैंने अभी आपको बताया था कि सिन जो है आपका वो पीछा करेगा, और बहुत सारी चीजें हैं जो डाउटफुल थिंग्स हैं वो आपको याद आएंगी कि अरे मैं हो सकता है कि मैं इस जर्नी में सफल ना हो। सो बहुत सारी चीजें जो वो फेस करता है। सो करेक्ट आंसर इज स्टूडेंट्स स्लॉग ऑफ डिस्पॉन्ड। नेक्स्ट वन, देयर आर हेल्पर्स एंड हार्मर्स अमंग फेलो पिलग्रिम्स इन क्रिश्चियंस जर्नी इन पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ हेल्पर। सो स्टूडेंट्स प्लीज डू रीड द ऑप्शन, और मैं थोड़ा सा आपको तब तक कुछ बताता हूं। देखिए जब क्रिश्चियन जो है रेडी होता है ना कि मैं एक पिलग्रिमेज पर जा रहा हूं, तो जब वो पिलग्रिमेज के लिए रेडी होता है तो उसके घर से उसकी जो वाइफ है, उसके जो बच्चे, वो कहते हैं अरे कहाँ जा रहे हो हमें छोड़ करके। पहली तो उसके लिए ऑब्स्टिकल्स हैं। इवेंजलिस्ट है कि जो उसको गाइड करता है कि ठीक है उस गेट की तरफ जाना है तुमको, वो जो लाइट दिख रही है उधर साइड को जाना है। राइट स्टूडेंट्स, सो बहुत सारे लोग उनको मिलते हैं रास्ते में, क्रिश्चियन को बहुत सारी उनकी जर्नी में। और ये जो लोग मिलते हैं तो कुछ लोग हेल्पर हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मिसगाइड करते हैं। सो इनमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है कि जो ऐसा लग रहा है कि उसने मिसगाइड किया। सो नाउ स्टूडेंट्स अगर हम इनके नेम पढ़ेंगे तो हमें नेम से ही समझ में आ जाता है। करेक्ट आंसर वैसे फर्स्ट है मिस्टर वर्डली वाइजमैन। अब वर्डली वाइजमैन स्टूडेंट्स, सो इट मींस स्पिरिचुअलिटी एंड वर्डली। देखिए जहां स्पिरिचुअल बात आएगी वहां वर्डली बात बिल्कुल भी नहीं आ सकती, बिकॉज स्टूडेंट्स वर्डली थिंग्स से स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल टोटली डिफरेंट होती है ना। ये संसार और यहाँ पर स्टूडेंट्स जिसे हम बोलते हैं ना कि ये वर्ल्डली थिंग्स लाइक यू कैन से कि जिसे हम बोलेंगे कि जैसे बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेजर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेजर्स जो हैं हमारी दुनिया के, यस। सो जिसे हम कहते हैं भौतिक संसार। एंड सी वर्ल्डली वाइज मैन, देन गुड विल। सो गुड विल देखिए आपको लग रहा है ना गुड विल यानी हेल्प करेगा ही। द इंटरप्रेटर, सो इंटरप्रेटर ने इंटरप्रेट करके कि दीज आर द थिंग्स। इवेंजलिस्ट मैंने आपको बताया उसने ही इशारा किया था कि दैट इज द गेट जिधर साइड को तुम्हें जाना है इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्क। नेक्स्ट वन, there are helpers and harmers students, so yes this one is the answer you got. And now see the next one, the life and death of Mr. Badman was written by so Sir Henry Wotton, John Bunyan, Jamie Taylor, and then see Richard Baxter. So please do select the right answer। और वैसे I know कि students आपको पता है आंसर, because जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं उन्हीं पर आंसर होगा। So correct answer students, yes you know B is the answer. It's John Bunyan. Yeah, John Bunyan has written Mr. Badman, Life and Death of Mr. Badman. ये स्टूडेंट्स ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है और काफी अच्छा वर्क है और आपके पढ़ने लायक है कि अगर आप इसे याद रख सके इसका टाइटल और टाइटल के साथ बनियान का रिलेशन, सो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज स्टूडेंट्स आपके यूजीसी नेट एग्जाम के लिए ये इंटरेस्टिंग है। नाउ सी द नेक्स्ट वन, सो मैच द आइटम्स इन द लिस्ट फर्स्ट विद द आइटम्स इन लिस्ट सेकेंड। सो प्लीज हमें मैच करना है। यहाँ पर ऑथर्स हैं एक साइड और एक साइड है वर्क्स। सो लूसी हचिनसन, जॉन बनियान, जॉन एवलन एंड मार्गरेट कैपेंडिस। देखिए अभी मैंने जो एक पिछले अभी क्वेश्चन आपको दिखाया, बहुत सारे देखिए टीचर्स आपको कहते हैं ना, वो कहते हैं हम बहुत एक्सपर्ट हैं यूजीसी नेट के। मैं स्टूडेंट्स आपको बता दूं एक्सपर्ट उनकी बातों में एक्सपर्टनेस है, दे हैव नो एक्सपर्टनेस इन एग्जैक्टली पेपर। वो आपको कुछ प्रोवाइड नहीं करते हैं, बस बातें कर सकते हैं कि हाँ हमारी बातें बहुत अच्छी हैं। देखिए रियल बैकग्राउंड पर आइए, यूजीसी नेट जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको पैशनेट होने की जरूरत है।
पैटर्न समझने की जरूरत है। ये समझने की जरूरत नहीं है कि मुझे बहुत आता है, मैं बहुत समझदार हूं, मैं आपको बहुत कुछ करा सकता हूं। अरे करके दिखाओ ना यार, सिंपल सी बात है। नाउ सी, सो ऑथर्स वर्क्स एंड ऑल्सो, अब मैं थोड़ा सा मैच करता हूँ। देखिए लूसी हचिंसन, मैंने आपको अभी पहले एक बार अभी आपको बताया था कि इन पर एक वर्क आया था स्टूडेंट्स हचिंसन को लेकर के। सी जॉन बनियान, देन जॉन एवलिन, सो मार्गरेट कैवेंडिश। देखिए जब हम जॉन एवलिन की बात करते हैं ना, सो इनकी हम डायरी को वैसे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, या डायरी को हम थोड़ा सा देख सकते हैं। जॉन बनियान की अगर बात किया जाए तो देखिए डेथ या लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन। सो देखिए आपके एग्जाम में दूसरी बार ये रिपीट हो गया ना क्वेश्चन, बिल्कुल आपको समझ में आ गया इजीली। अब स्टूडेंट्स अगर हमने सेकेंड को फर्स्ट के साथ मैच कर लिया, हम इस ऑप्शन में स्टूडेंट्स, ये ट्रिकी क्वेश्चन जैसे होते हैं ना, तो इस ऑप्शन में हम आ जाते हैं, देख लेते हैं मैचिंग सेकेंड टू फर्स्ट वन। सो सेकेंड टू फर्स्ट वन स्टूडेंट्स यू कैन सी ऑन थर्ड ऑप्शन सेकेंड टू फर्स्ट वन। अब हम बिल्कुल कह सकते हैं कि यस दिस इज द 100% करेक्ट आंसर। हमें कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ भी नहीं पता, बट हमने सेलेक्ट कर लिया राइट आंसर को। सी स्टूडेंट देखिए ये करेक्ट आंसर होगा, सी इज द करेक्ट आंसर एज यू कैन सी नाउ ऑन योर स्क्रीन। सो स्टूडेंट्स ये है शॉर्ट ट्रिक की जिससे आप बहुत इजीली कर सकते हैं। एक को मैच कीजिए, किसी भी एक को उठा करके मैच कर दीजिए। अब आप दूसरे को देख लीजिए कि लूसी हचिंसन, तो देखिए मेमोयर ऑफ लाइफ ऑफ कॉलोनल हचिंसन। मैंने अभी आपको मेमोयर के बारे में बताया ना पिछले, की हचिंसन से रिलेटेड है जो, सो बिल्कुल आपको वो रिमेंबर रखना चाहिए था। जॉन एवलिन की अगर स्टूडेंट्स में बात करूं तो ये डायरी के लिए वैसे जानी जाती हैं बाय द वे। सो सी थर्ड की जो हम मैचिंग करने वाले हैं वो थर्ड की हम सेकेंड के साथ मैचिंग करने वाले हैं। और मार्गरेट कैवेंडिश की अगर मैं बात करूं, सो नेचर्स पिक्चर, सो मार्गरेट कैवेंडिश। सो दिस वन इज द राइट मैचिंग। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा एक दो बार। So thank you so much students and do not forget to subscribe the channel and share with your friends। और बताइए कि यूजीसी नेट एग्जाम में देखिए ऐसे अगर हम बनियान को समझने की कोशिश करें, आपने देखा देखिए बनियान को पूरा पढ़ लिया एंड व्हाट यू फाउंड बेसिकली, बनियान से क्वेश्चंस किस टाइप किया है स्टूडेंट्स, ये नेचर ऑफ क्वेश्चन और इनकी कवरअप और इनसे रिलेटेड नोट्स फटाफट तैयार कीजिए, यूजीसी नेट क्वालिफाई कीजिए। और अगर स्टूडेंट्स अगर आपको लगता है तो मेरी क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं और बढ़िया नोट्स आपको मिलेंगे, फर्स्ट क्लास नोट्स, सारा कलेक्शन, सारे पीडीएफ, पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ द पेपर्स वन प्लेस, और अनलिमिटेड स्टूडेंट्स लर्निंग और अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म जहां पर आपको बिल्कुल 100% लर्निंग की गारंटी देते हैं हम। देखिए व्हाट्सएप क्लासेस या फिर कोई अदर टाइप की क्लासेस, रिकॉर्डेड टाइप की क्लासेस नहीं चलती है अनअकैडमी पे। एवरीथिंग इज लाइव ज्वाइन कीजिए और लाइव देखिए। बाय द वे अगर आप मिस कर देते हैं तब रिकॉर्डेड देख सकते हैं, लेकिन डेली जो लाइव क्लासेस आती है आप अपने टीचर से बात भी कर पाएंगे, टीचर से अपने क्वेश्चंस भी पूछ पाएंगे। सो वो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सो चलिए, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।